Students, in the previous class, we discussed about some defects, right? Now, today we are going to look at next topic, that is refraction of light through a prism. Now, what is this prism? Prism is a transparent refracting medium bound by two plane surfaces. Okay, you can see the three-dimensional view of glass prism. So you can see there are two refracting surfaces, right, inclined at each other at certain angle. Commonly it is 60 degree or 45 degree. Okay, and the down part which we use in books to understand, this is the principal section of a glass prism. So now you can look at this diagram. I'll tell you what are the refracting surfaces. A, B, E, D. A, B, E, D. A, B, E, D is, and A, C, F, D. A, C, F, D. This is the refracting surface of the prism. Base will be, it's already mentioned, B, E, F, C. Okay, base of the prism. Angle BAC. This angle is prism angle. The line of intersection of the two refracting surface is called the refracting edge, AD. You can see in the diagram. Okay. Now, the face ABC. This is this face ABC. ABC face, which is this one. This is the principal section of the prism. Okay. So now let's see how does light get refracted through a prism. Now, the refraction of light through a prism follows laws of refraction. We know that. So in a prism, refraction takes place on its refracting surface. When the light is entering the prism, that will be from a rarer medium to a denser medium. And when the light leaves the prism, it will be from a denser medium to a rarer medium. Okay, लाइट एंटर होगा तो वो रेयर टू डेंसर होगा, और जब लाइट प्रिज्म को लीव करता है, when it leaves the prism, it will be from denser to rarer. Alright, so refraction through a glass prism, the diagram is clearly mentioned here. Okay, so when a light ray PQ, you can see PQ here, PQ falls on the face of AB at an angle of incidence, it undergoes refraction at Q, right? This is Q. So it undergoes refraction here and bend towards the normal to travel QR. अब क्या होगा, refracted ray QR जो है falls on AC at an angle of incidence I1, ठीक है, and at point R it undergoes refraction and bends away from normal. Normal से काफी दूर bend होगा because it is traveling from where? जब लीव कर रहा है लाइट, when light leaves the prism, it travels from denser medium to rarer medium. So when it is traveling from denser medium to rarer medium, so it will bend away from normal, है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी QR का रिफ्रैक्शन होने के बाद it is bending away from normal. Okay, so when the incidence ray PQ and RS, okay, so when you extrapolate it, when it is extrapolated, that is this one, when you extend it back, you see they are meeting at a point called O. मैंने उसको नाम दिया है O. Okay, so the line PQO, this line, this is what actually the original path of incident light, right? But due to refraction it has got QR, but otherwise this should have been the original path incident light. So the line ORS describes the direction of the emergent ray. So thus the incident ray suffers a deviation. You can see there is a bending happening here, right? So it suffers a deviation through an angle, and that angle is called angle of deviation. This, okay, due to refraction through the prism, right? So this is called angle of deviation. This angle, when you're extending this, the original path of this ray and this, you can see there is a bending happening, there's a bending of light ray. So at what angle the bending has happened, that information is given by this part. Okay, so let's see what are the factors affecting this angle of deviation.
Okay, before that, I've given you all definitions of prism, angle of prism, and angle of deviation. If you want to know what are they, how to explain it. Prism, I've already explained you. Angle of prism, I've shown you. So, angle between two non-parallel refracting surfaces. Okay, angle of deviation, how can you describe it? It is the angle between the direction of incident ray of light and the emergent ray of light. Okay, as simple as that. Okay, now let's see what are the factors affecting the angle of deviation. So first one is angle of incidence. Now this graph shown here, okay, this graph, it shows the variation of angle of deviation with angle of incidence. Okay, so this is the symbol, this you can see, this is the symbol of angle of deviation. So anyway, so how is angle of incidence a factor for this? Let's see. See, when the angle of incidence is increased, the angle of deviation first decreases, passes through a minimum, and then increases. See, when angle of incidence is increasing, okay, the angle of deviation first decreases. You can see it decreases, and then suddenly there is a increase. That means for a certain value of angle of incidence, the light passing through the prism suffers minimum deviation. एक ऐसा वैल्यू आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का जहाँ पे प्रिज्म क्या होता है, सबसे कम डेविएशन जो है लाइट का थ्रू प्रिज्म बिकम्स मिनिमम. सो एंगल ऑफ डेविएशन एट दिस पोजीशन, जहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो, उस पोजीशन पे जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम इस तरह लिखते हैं. ठीक है, तो व्हेन द प्रिज्म इज इन दिस पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है उस टाइम पे क्या होता है, एंगल ऑफ एमर्जेंस, इस पॉइंट पे क्या होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ रहे? सो दैट्स हाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज रिलेटेड. मतलब पहले क्या हो रहा है, वापस रिपीट करते हैं. पहले क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, तब एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, passes through a minimum value and then increases. ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट या वैल्यू आता है एंगल का जहां पे जो लाइट पास हो रहा है थ्रू प्रिज्म सफर्स मिनिमम डेविएशन. तो जहां पे वो मिनिमम डेविएशन सफर कर रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. और वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ होता है, जहां पे एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल टू कब होता है, व्हेन एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो ये एक फैक्टर हुआ. दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होता है, जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा. मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. यानी मोर द एंगल ऑफ प्रिज्म मोर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. Refractive index of the prism material. See, higher the refractive index of the prism material, greater is the angle of deviation. वो भी directly proportional है. जितना ज़्यादा refractive index होगा उतना ज़्यादा deviation होगा. Okay? अब color of light. See, जो refractive index है prism का, material का, depend करता है upon the color, यानी wavelength of the light. For a given material, prism का refractive index is the highest, यानी glass prism की बात कर रहे हैं. Refractive index is the highest for violet and lowest for the red light. ठीक है, क्योंकि red का क्या है, red has the longest wavelength. ठीक है, wavelength जो होता है red का वो बहुत ज़्यादा होता है और violet का wavelength बहुत कम होता है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वायलेट का ज्यादा है और रेड का क्या है, कम है. सो लाइट जो होता है वायलेट कलर का वो डेविएट्स द मोस्ट एंड लाइट ऑफ रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट. दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एक्चुअली, जो डिस्पर्शन के टाइम पे विल डिस्कस दिस ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो आप लोग, जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है वो कम डिस्पर्स होता है. रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इसलिए वो डिस्पर्स भी कम होगा.
डेविएट भी कम होगा. Okay, we'll see what is dispersion of light as the next topic. Let's see. Dispersion of white light का मतलब क्या है? What is dispersion of white light by a glass prism? See, light coming from the sun appears like white, right? So, Sir Isaac Newton showed by using a glass prism that white light actually consists of 7 colors. आपको ये दिख रहा है, white light is passed through a prism and you can see constituent colors, है ना? So what he did, he allowed a narrow beam of white light to fall on one face of the glass prism. He placed a white screen. यहाँ पे एक screen रखा गया था. There was a screen placed here. There was a screen placed here. Okay, on the other side of the prism, a band of 7 color was seen on the screen. So ये जो 7 colors है, वो कौन से हैं? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, जिसको हम कहते हैं Vibgyor short में. Right? So the process of splitting of white light into its 7 component colors is called dispersion of white light. So band of the 7 colors formed on the screen due to dispersion is called spectrum of light. ये जो बैंड आपको मिला है, उस बैंड को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं. पर ये जो फिनोमेना है, जो व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो रहा है, वो फिनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं. ओके, ये डिस्पर्शन का कॉज क्या है? सी, dispersion of white light into 7 colors occurs because white light of different colors have different wavelength. पहली बात तो ये है, हर कलर का वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है. ठीक है. So because the light of different colors has different wavelength, so in this band of 7 colors, रेड लाइट जो होता है, अब ये कलर का जो बैंड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेड लाइट जो होता है उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, और वायलेट क्या क्या होता है, सबसे कम, शॉर्टेस्ट होता है. ठीक है. सो लाइट्स ऑफ ऑल कलर्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम, बट इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे अब यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड. सो ड्यू टू दिस difference in their speed, light of different colors bend through different angles. अलग एंगल में बेंड होगा. सो रेड लाइट जो है ट्रैवल्स द फास्टेस्ट एंड द वायलेट लाइट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द 7 कलर्स. यानी रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है एंड वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट. ओके, समझ गए? यानी स्पीड ऑफ रेड कलर इन अ मीडियम इज हाईएस्ट एंड द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज द लीस्ट. सारे कलर्स जो व्हाइट लाइट के जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो डिफरेंट अमाउंट में होता है व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म. ठीक है. सो दिस गिव्स राइज टू द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट. ओके, तो उसी चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म पे आपको बताया गया. अब देखते हैं मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होता है. और एक और क्वेश्चन है, कैन द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट बी रिकम्पोज्ड. पहले देखते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है. मोनोक्रोमैटिक लाइट वो होता है जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, यानी लाइट ऑफ वन सिंगल कलर, या बोल सकते हैं ऑफ वन सिंगल वेवलेंथ, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट. ठीक है. जैसे लेजर्स हो गया, वो मोनोक्रोमैटिक है. सोडियम लाइट वो गोल्डन येलो कलर देता है, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट में. ठीक है. पॉलीक्रोमैटिक क्या होता है, लाइट मेड अप ऑफ मेनी कलर्स, यानी बहुत सारे रेडिएशंस हो अलग वेवलेंथ के, उसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट. जैसे व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमैटिक है क्योंकि वो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. ओके. कैन द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट बी रिकम्पोज्ड. क्या रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यस. जो हमें 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला था प्रिज्म से, वो 7 कलर्स को वापस हम रिकम्पोज कर, इसका रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. सो कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म and can be recombined to get white light by another glass prism. So what have they done?
See, when a narrow beam of light is passed through a prism, it splits it into 7 colors. You can see it is split into 7 colors. Okay, this shows that the white light is composed of 7 colors. ये तो समझ में आ गया. अगर ऐसा है तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि ये 7 कलर्स रिकम्बाइन करके हमें वाइट लाइट दे. इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. ठीक है, या बोल सकते हैं रिकम्पोजिंग ऑफ डिस्पर्स्ड वाइट लाइट. तो ये कैसे, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. क्या एक्सपेरिमेंट था? प्रिज्म P1 दिख रहा है, ये प्रिज्म. ठीक है, एक टेबल पे रखा एंड अ स्क्रीन वॉज बिहाइंड इट. थ्रू अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट वॉज पास्ड ऑन प्रिज्म P1. P1 में एक नैरो बीम ऑफ लाइट पास किया. सो दिस prism disperses the incident white light into 7 colors. Okay, so band of these colors can be seen on the screen. Now remove the screen remove किया and he placed another prism P2 यहाँ पे of same material पर opposite direction में. दिख रहा है उल्टा है, same material लेकिन opposite direction में रखा है. So place a white screen behind P2 के पीछे यहाँ पे एक white screen रखा. A spot of white light appears on the screen. So this shows that the second prism has recombined the dispersed light coming from the first prism into white light. ठीक है, पहले क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, ये वाला P1 लिया, इसके यहाँ पे एक स्क्रीन रखा और चेक किया कि 7 कलर्स आ रहा है कि नहीं. आया. ही रिमूव द स्क्रीन और फिर P2 रखा. ओके, P2 रखा. अब P2 रखा, उसको उल्टा रखा और एक स्क्रीन यहाँ रखा. सो वॉट ही ऑब्जर्व कि ये जो सारे रेज हैं वो कंबाइन होके वाइट लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर. रेनबो इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एक सिंपल एंड बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स, नेचर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ठीक है, तो जब लाइट उस पर गिरता है क्या होता है, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट. यानी ये जो वाटर ड्रॉपलेट है एटमोस्फेयर में, ये जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म. इसलिए हम कहते हैं रेनबो इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट. ओके, तो इसमें होता क्या है, सी व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट, ये जो एटमोस्फेयर इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. सो वी आर कंसिडरिंग वन वाटर ड्रॉपलेट. ठीक है, सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर, द सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड. ठीक है, मतलब द रिफ्रैक्टेड सनलाइट जो होता है वो स्प्लिट होता है इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स. स्प्लिट हो गया. सो रेड से लेके वायलेट तक के सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं. सो ये जो रेड कलर है दैट डेविएट्स द लीस्ट, बहुत कम डेविएशन होता है उसका. रेड का वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा होता है. एंड द वायलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट, उसका वेवलेंथ सबसे कम है. सो डिफरेंट कलर्स ऑफ रिफ्रैक्टेड सनलाइट फॉल ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द वाटर ड्रॉप. नाउ ईच कलर सफर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हुआ ना, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, तो ये क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. सो द रिफ्लेक्टेड कलर्स ऑन रीचिंग द लोअर सरफेस, यहाँ से जब नीचे की तरफ आ जाता है लोअर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप्स, दैट इज रिफ्रैक्टेड अगेन इनटू द एयर एंड देन वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स विच इज नोन एज रेनबो. सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखो लाइट आया, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, एक रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे. ठीक है, एंड देन ये स्प्लिट हुआ, डिस्पर्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, राइट, and then again it is refracted. So rainbow is due to refraction, dispersion and internal reflection of light. तो conditions है ये रेनबो देखने के लिए. टू ऑब्जर्व दिस रेनबो, या फिर रेनफॉल होना चाहिए, ड्यूरिंग अ रेनफॉल होगा, नहीं तो आफ्टर द रेनफॉल होगा, या हम जैसे अगर एक वाटरफॉल की तरफ देख रहे हैं तब दिखेगा जब सन इज एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर. तो ये कंडीशंस है फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन.